Good morning friends. In your today's class, you will study present indefinite tense and this is your class 3rd for present indefinite tense. Before this class, you will have studied total 6 structure of present indefinite tense and after that you will have to study exceptional structure of present indefinite tense means इसके बाद जो अपवादात्मक रूल हैं, जो एक्सेप्शनल रूल और स्ट्रक्चर हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनको आपको स्टडी करना है। क्योंकि हमको शुरू से लेकर के प्राइमरी चीज़ों को लेकर के, बेसिक चीज़ों को लेकर के, एलिमेंट्री चीज़ों से लेकर के एडवांस तक हमको आगे बढ़ना है, इसलिए ज़रूरी है कि उसको हम पढ़ें। सो इन दिस डायरेक्शन firstly we study rule whenever we get want means जाना, like means पसंद करना, go means जाना, with infinitive means to verb in first form them कि जब किसी भी सेंटेंस में हमें want, like, go के साथ कोई infinitive मिले means to verb in first form मिले तो उसको हम ट्रांसलेट करते समय स्ट्रक्चर क्या होता है, होता ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वांट लाइक गो यस और ईएस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इफ सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर देन वी राइट वांट्स लाइक्स आर गोज एंड इफ सब्जेक्ट्स आर plural then we write only want, like or go. For example, he wants to be an IAS कि वह एक IAS बनना चाहता है। You like to play cricket आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं। रोहन likes to eat apples रोहन सेब खाना चाहता है। एंड मोहन wants to see the ताज मोहन ताजमहल देखना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी सेंटेंस में हमको वांट, लाइक और गो के साथ साथ कोई इन्फिनेटिव क्रिया मिले, यानी कि ना नीने से ख़त्म होने वाली क्रियाएं मिले, तो उसका ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब के बाद हम ना नीने से ख़त्म होने वाली क्रिया यानी कि इन्फिनेटिव को टू वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसा कि ये आपका दोनों स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर को हम अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 स्ट्रक्चर में भी चेंज कर सकते हैं। 6 स्ट्रक्चर में जैसा कि आपका नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट चेंज कर देंगे, आपके इंट्रोगेटिव में डू और डज का यूज़ कर देंगे। अब अगर इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, ही वॉन्ट्स टू बी एन IAS तो he wants to be an IAS, he does not want to be an IAS, does he want to be an IAS, why does he want to be an IAS, does he not want to be an IAS, why does he not want to be an IAS. And next example, you like to play cricket, you do not like to play cricket, do you like to play cricket, and why do you like to play cricket, do you not like to play cricket, why do you not like to play cricket. Next example, Rohan likes to eat apples, Rohan does not like to eat apples, does Rohan like to eat apples, why does Rohan like to eat apples, does Rohan not like to eat apples, why does Rohan not like to eat apples. And next is Mohan wants to see the Taj, Mohan does not want to see the Taj, does Mohan want to see the Taj, why does Mohan want to see the Taj, does Mohan want to see the Taj, why does Mohan want to see the Taj. So like the way we can speak many sentences. I like to talk new people, I do not like to talk new people, do I like to talk new people, why do I like to talk new people, do I not like to talk new people, why do I like to talk new people. She likes to go anywhere, she does not like to go anywhere,
And does she like to go anywhere? Does she not like to go anywhere? Why does she not like to go anywhere? So like that we can speak many sentences. कहने का मतलब ये है कि हम इस प्रकार से बहुत सारे sentences को बोल सकते हैं. There is no bar. And after that, next rule is whenever we get know or learn. Know means जानना, learn means सीखना with infinitive. Then structure is कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में know means जानना और learn means सीखना, इसके साथ साथ हमें infinitive मिले, means नानी ने एंडिंग वर्ब, नानी ने एंडिंग वर्ब, नानी ने से खत्म होने वाली क्रियाएं मिले, तो वे आपको ट्रांसलेट करते समय हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं एंड आफ्टर दैट नो और लर्न लिखते हैं और उसके बाद हाउ टू का यूज़ करते हैं और हाउ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और नो और लर्न के साथ हाउ टू का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये मैनर शो करते हैं. नो और लर्न किसी भी कार्य के करने के तरीके को दिखाते हैं. जैसे मैं अंग्रेज़ी बोलना जानता हूँ मीन्स मैं अंग्रेज़ी बोलना जानता हूँ, अंग्रेज़ी कैसे बोलते हैं. व्हाट इज़ द वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाट इज़ द वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. तो इस तरीके से दिखाते हैं. मैं कंप्यूटर चलाता हूँ या मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ कि व्हाट इज़ द वे ऑफ ऑपरेटिंग द कंप्यूटर. सो लाइक द वे वी यूज ऑफ हाउ टू मीन्स नो और लर्न, इन दोनों क्रियाओं के साथ हम हाउ टू का यूज़ करते हैं और किसी भी वर्ब के साथ हम हाउ टू का यूज़ नहीं करते हैं. दूसरी चीज़ों के साथ हाउ टू का यूज़ नहीं करते हैं. केवल नो और लर्न दो वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हाउ टू का यूज़ करते हैं और दूसरे वर्ब्स के साथ हाउ टू का यूज़ नहीं करते. आई थिंक यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि नो और लर्न मैनरफुल वर्ड हैं. ये किसी भी कार्य के करने के तरीके को दिखाते हैं और दैट्स वाई नो और लर्न के साथ हम हाउ टू का यूज़ करते हैं और दूसरे वर्ड्स जिनके साथ इन्फिनेटिव का यूज़ होता है वहाँ पे केवल टू का यूज़ करते हैं और इनके साथ हम हाउ टू का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहले तो वी शैल सीधा स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस नो लर्न SRES, हाउ टू वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंगुलर नंबर एंड फॉर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट प्लस नो लर्न प्लस हाउ टू प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, I learn how to operate the computer, you do not know how to talk your elders, and she does not know how to swim. Means he knows how to speak English. वह अंग्रेजी बोलना जानता है. I learn how to operate the computer. मैं कंप्यूटर चलाना सीखता हूँ. You do not know how to talk your elders. तुम अपने से बड़ों से बात करना जानते हो. She does not know how to swim. वह तैरना नहीं जानती है. सो लाइक द वे दीज आर द एग्जाम्पल. एंड इफ वी कैन चेंज, इफ वी वुड लाइक टू चेंज द सेंटेंसेज इन एवरी स्ट्रक्चर, सो वी कैन चेंज ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वाई डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डज ही नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वाई डज ही नो हाउ टू स्पीक English. And next is I learn how to operate the computer. I do not know. I do not learn how to operate the computer. Do I learn how to operate the computer? Why do I learn how to operate the computer? Do I not learn how to operate the computer? Why do I not learn how to operate the computer? Or next example, वह क्रिकेट खेलना सीखता है. ही लर्न्स हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर. ही डज नॉट लर्न हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर. डज ही लर्न हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर. वाई डज ही लर्न ऑपरेट द कंप्यूटर. डज ही नॉट लर्न हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर. वाई डज ही नॉट लर्न हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर. तो मीन टू से दैट
कि अगर सेंटेंस में आपके मुख्य क्रियाओं के साथ कोई भी इन्फिनेटिव वर्ब मिलता है तो इन्फिनेटिव वर्ब आपके मुख्य क्रिया के बाद टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगते हैं। केवल नो और लर्न ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ हाउ टू का यूज होता है और सभी वर्ब्स के साथ टू का यूज होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टू रूल्स। So next rule, whenever we get who means कौन in Hindi sentence, in Hindi sentence, then structure is who plus verb in first form s or es plus object. So next rule is whenever who कौन in हिंदी, whoever whenever who कौन in हिंदी सेंटेंस then structure is, कहने का मतलब कि जब हम हिंदी सेंटेंसेस को बोलते हैं और कौन शब्द वहाँ बीच में आए तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। वहाँ पे जो कौन शब्द होता है, कौन शब्द एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है, एक सब्जेक्ट का काम करता है, एक
कर्ता का काम करता है, वहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि फर्स्टली वी राइट सब्जेक्ट मीन्स फर्स्टली वी राइट हु एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। और वहाँ पे ध्यान ये देना है कि हु मीन्स कौन शब्द किसी एक नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है या वह किसी एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है। अगर हु शब्द किसी एक नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है तो क्रिया में यस या ईएस का यूज करते हैं। अगर वह एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है तो वहाँ पे यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। हु प्ले क्रिकेट इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में क्रिकेट कौन खेलता है। या इस तरीके से हु नो महात्मा गांधी, गांधी को कौन जानता है, गांधी को कौन लोग जानते हैं। हु नो महात्मा गांधी, गांधी को कौन लोग जानते हैं। तो इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, अगर कौन शब्द एक लोगों के लिए यूज हुआ है, एक नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, तो वर्ब में हम या ईएस को जोड़ते हैं। और अगर वह एक से अधिक लोगों के लिए यूज हुआ है तो हम वहाँ पे यस या ईएस को नहीं जोड़ते हैं, यस या ईएस को नहीं जोड़ते हैं। और इस तरीके से आपके एग्जाम्पल होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इट इज़ माई humble request, please more and more subscribe the channel and press the bell icon, and for suggestion and for comment you comment more and more comment and more like, and for any personal advice, for personal suggestion you can suggest me on my personal number 731752983877676110. So that's all for today. Have a good day and have a nice day. Have a cheerful day.